Good morning to all of the students. Today we are discussing the next topic of the chemical reactions and the equations. So how you will write chemical equations? They given here. So look, chemical equations how to write here. Chemical equations, first we will look about the chemical reactions. In the activity we will see a colorless equation of the zinc, that is zinc sulfate, and addition of the zinc is there, and the blue copper sulfate are there. This already we discussed about. Aqueous solution of the copper sulfate and the zinc are they given. So when it will react, so you will get as a copper and the zinc sulfate. The aqueous solution of the zinc sulfate and the copper. The sulfate solution will mix with the zinc, and copper will allow. Means copper will be separated. So you just see CuSO4 plus Zn. So SO4 will combine with the Zn. So that we are getting as a zinc sulfate and the copper. So this is a combination of the copper sulfate plus zinc. We are getting as a zinc sulfate and the copper. Now aqueous solutions, they are telling also copper sulfate. So how we will write in day-to-day life? तो ये this is a chemical reactions and this is a chemical formula. ये मेरा क्या है, chemical reactions है. Chemical reaction जब combine होता है कोई भी reactions का, जैसे कि copper sulfate और zinc है, तो zinc sulfate और copper मिला, तो इसको this we are telling as a chemical equations. In this zinc copper sulfate plus zinc we are telling as a reactant, and zinc sulfate plus copper we are telling as a product. Here. So remember, copper sulfate plus zinc we are telling as a reactant, and zinc sulfate plus copper we are telling as a product. Now for writing a chemical reaction there are few rules are there. Chemical reaction के लिए अपने को कुछ rules आते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, कॉपर बोलते हैं ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट होता है, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है. हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, reactant, and in the right hand side product. As example, copper sulfate plus zinc, this is the reactant, and zinc sulfate plus copper, this is the product. You will look, an arrow heading toward the product is written, is drawn in between them. Now you will see the right hand part, बोलते हैं ना arrow headed. reactant के बीच में क्या आता है, reactant के बाद arrow दिया है तो product आता है. हाँ, reactant के बाद arrow आता है तो क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा. इतना याद रखना, रिएक्टेंट और बीच में क्या देंगे, एरो देंगे, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा. नाउ इफ यू विल सी द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, in the case of, look, if the reactant or product are two or more, they are linked with a plus sign. They are telling, some of the time they are telling जो reactant और product जो होता है ना, उसमें लिंक होता है प्लस साइन की. एज एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 2, तो कॉपर सल्फेट जिंक, उसमें एरो दिया है, हाँ, प्लस मेंशन किया है दोनों के बीच में. सिमिलरली इन द प्रोडक्ट ऑल्सो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, वहाँ भी प्लस दिया है. नाउ सम ऑफ द टाइम फिजिकल स्टेट्स आर देयर. इन द फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर देयर. तो फिजिकल स्टेट क्या होता है, रिएक्ट में मेंशन करते हैं, इंडिकेटिंग द गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट एज ए मेंशन यू. तो गैसेस के लिए जी होता है, सॉलिड लिक्विड के लिए एल, और सॉलिड के लिए एस. इन द ब्रैकेट वी हैव टू मेंशन इट. जैसे कि कॉपर सल्फेट एक्वेस है तो Ag मेंशन किया, जिंक सल्फेट सॉलिड है तो उसने S मेंशन किया, जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा, एक्वेस हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, एंड कॉपर एज एन S. तो लाइक दिस वे वी हैव टू स्टेट मेंशन इन द ब्रैकेट व्हाट काइंड ऑफ द सॉल्यूशंस आर देयर. जैसे कि आयरन Fe होता है तो सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको S मेंशन करेंगे. वाटर H2O होता है. तो ये सेकेंड थिंग, तो याद रखना, सॉलिड, लिक्विड, गैस है तो अपने को ब्रैकेट में मेंशन करने पड़ेगा. रिवर एक्वेस, सॉलिड, देन Ag, देन S. बट सम ऑफ द टाइम गैसेस यू आल्सो गेटिंग. तो व्हेन हीट इज ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड टू ब्रिंग आउट अ रिएक्शन, जब हीट करते कोई रिएक्शंस को, तो हीट फॉर हीट साइन वी आर मेंशनिंग अ ट्रायंगल साइन, जस्ट सी डेल साइन वी आर मेंशनिंग. तो हीटिंग, जैसे एज एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, we are heating, so we put it on the arrow, we put it a del sign, triangle sign. So we are getting calcium oxide and the carbon dioxide. Now carbon dioxide is a gas sign, तो गैस साइन के लिए एरो मेंशन करने पड़ता है, अपवर्ड एरो मेंशन करेंगे हम लोग. तो सिमिलरली दैट द फैक्ट इज रिलीजिंग दैट द रिएक्शन बिटवीन द एक्वेस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड जिंक डस्ट इज इंडिकेटेड एज हियर. जैसे कि देखो उसमें जब उसको हीट करेंगे ना, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट को, जिंक को, तो जिंक सल्फेट और कॉपर मिल रहा है सॉलिड फॉर्म में, बट वी आर यूजिंग एज एन हीट ऑल्सो, वहाँ पे हीट भी मिलता है अपने को. तो हीट के लिए हम लोग हीट भी लिख सकते हैं, तो ट्रायंगल साइन.
एज एन अ ट्राइंगल साइन. नाउ CO2 के ऊपर अपवर्ड में एरो दिया है, वो अपवर्ड एरो दैट इंडिकेटिंग एज एन अ गैसेस. हाँ, जो अपवर्ड एरो मेंशन किया है वो क्या है, गैसेस है, रिमेंबर ये. नाउ फिफ्थ वन, इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल द सर्टन कंडीशंस. अपने को कुछ कंडीशन मेंशन फिल करनी पड़ती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शंस. नाउ दिस वी आर इंडिकेटिंग अपन एरो, बोलते ना एक एरो मेंशन करने पड़ता है उसमें, इंडिकेटिंग द डायरेक्शंस, उसका डायरेक्शन मेंशन करने के लिए. एज एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ अ वेजिटेबल ऑयल टेक प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री. जो वेजिटेबल ऑयल्स को चेंज करने के लिए अपने को क्या चाहिए, 60 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, विथ हाइड्रोजन गैस एंड द निकल कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है कि जब दो, बोलते हैं ना, दो रिएक्शंस रहते हैं तो उसके बीच में एक एलिमेंट पुट करते हैं, लड़वाने का काम करेगा वो कैटलिस्ट, दो लोगों को लड़ा के साइड में हट जाएगा. तो ये निकल क्या है, जैसे कि इसमें वेजिटेबल ऑयल की बात किया है और हाइड्रोजन गैस की बात किया है, और निकल एक तरह का कैटलिस्ट है. तो ये जैसे एज एग्जांपल रिएक्शन गिवन वेजिटेबल ऑयल एज एन अ लिक्विड फॉर्म, H2 गैस फॉर्म, 60 डिग्री एंड द निकल कैटलिस्ट. तो ये गेटिंग एज एन वनस्पति घी, वनस्पति घी एज एन सॉलिड फॉर्म. वनस्पति घी ये तरह तुम्हारा सॉलिड फॉर्म होता है. तो रिमेंबर निकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होगा, वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन दोनों को मिक्स करके कैटलिस्ट तो रहेगा उसमें, निकल तो रहेगा बट निकल साइड में हट जाएगा. निकल साइड में हट जाएगा इसमें. नाउ सम इंफॉर्मेशंस आर गिवन इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन इन द बिलो फॉर्म. एग्जांपल ऑफ द कॉपर ऑन रिएक्टिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिवन रेडिश कलर्ड. जो बता रहा है कॉपर चलता है ना, रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से तो एक तरह का रेडिश कलर मिलता है. दैट वी आर टेलिंग एज एन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडिश कलर ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. पॉइजनस दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो जैसे करो कॉपर का S दिया सल्फर, और नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्वेस बताया. अब कॉपर नाइट्रेट एंड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द वाटर दे आर टेलिंग. तो in this nitrogen dioxide is in a poisonous one, that is in a gas form. Water they are giving as in a liquid form, and the copper aqueous solutions. Now concentrated nitric acid, concentrated दो तरह का होता है, तो concentrated है, दूसरा aqueous होता है. तो ये aqueous वाला क्या बता रहा है, concentrated बता रहा है, और दूसरा dilute होता है. concentrated थोड़ा harmful रहता है और dilute थोड़ा इतना harmful नहीं रहता है. In the case of the reacting with dilute nitric acid, the product is nitric oxide. अब जब कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ पे अपने को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला था, बट इन द केस जो डाइल्यूट के बाद में क्या बात करेंगे, तो डाइल्यूट में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलेगा. कॉपर एंड दी HNO3 डाइल्यूट वन दे गिविंग. तो कॉपर नाइट्रेट दे आर टेलिंग एयर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड दी वाटर. नाउ ट्राई दिस वन, दे आर टेलिंग टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क एंड दी बैलेंस वन. दे हैव टेकन सिल्वर सोडियम क्लोराइड एंड दी सिल्वर नाइट्रेट. The aqueous solution of the silver nitrate and the sodium chloride. So both are the aqueous solutions. Once you will heat, once you will mix, so you are getting as a silver chloride and the nitrogen sodium nitrate we are getting in this case. मतलब वो सिल्वर के पे बोलते हैं ना, सिल्वर के पे क्लोरीन गैस आ गया, क्लोरीन कवर आ गया, और सोडियम के पे नाइट्रेट आ गया, सोडियम नाइट्रेट आ गया. तो मिक्स करते का सोडियम क्लोराइड एंड कॉनिकल फ्लास्क सिल्वर नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड जस्ट ट्राई अ थ्रेड एंड पुट इट इन द, जैसे कि लास्ट टाइम देखे थे कॉपर सल्फेट के टाइम पे कि कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एक तरफ क्या है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और दूसरी तरफ सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ट्यूब में है. एंड देन वी आर मिक्सिंग इट. ऑन मिक्सिंग वी आर गेटिंग एज एन अ सिल्वर क्लोराइड एंड द सोडियम नाइट्रेट दैट दे मेंशन हियर. तो दिस इज द weight in the conical flask. Again you will observe in both the part it will be balanced one. Here the balance you will observe as an 300.23 gram. Here also 300.23 gram on mixing it. But in the case of the balancing, on reacting, the color will totally change of the silver chloride and sodium nitrate. Yes, so silver nitrate is used in the water inks. They are telling silver nitrate हम लोग जो बोलते हैं ना water inks में यूज़ करते हैं. What are the other uses of silver nitrate in everyday life that we have to mention? Now balancing our chemical reactions, you have to first mention the number of atom and number of in the reactant part, कि number of atoms कितना होता है और product में number of atoms कितना होता है, silver में, nitrogen में, oxygen में, here and then the chlorine. As example of the nitrogen they are telling oxygen, hydrogen and the sulfur.
नंबर ऑफ एटम 1 है नाइट्रोजन में, और नंबर ऑफ एटम कितना है रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 2 है। ऑक्सीजन का देखो 5 दिया और 5। हाइड्रोजन दे आर मेंशनिंग 3 and 2 on the right hand part. Sulfur they are mentioning 1 and 1. So like this way you have to mention. Now in this case you will observe this is a silver and the nitrogen, oxygen and the sodium and the chlorine. सोडियम का हम लोग देख चुके ऑलरेडी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितना है, ऑक्सीजन मेरा 5 है, नंबर ऑफ आइटम्स एंड दी नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो 5। सोडियम इज ऑल्सो यू विल ऑब्जर्व 1 and 2। क्लोरीन they also mention about 1. So it is seen that number of atom of the element in the reactant in the equation is same as the number of atom in the product. That we are telling as a balancing का part. जब reactant जैसे कि reactant और product में ऑक्सीजन का देखो 5 सेम है इधर। ऑक्सीजन देखो नंबर ऑफ एटम reactant में लेफ्ट हैंड पार्ट में और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट पार्ट में दोनों 5 है, तो reactant बोलते हैं, इसको बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। बट इन सम ऑफ द टाइम एज एग्जाम्पल सोडियम रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में मेरा 2 है। हाइड्रोजन 3 और 2 दिया है, सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस में है, तो इन दिस केस वी हैव टू बैलेंसिंग, इधर मुझे बैलेंस करना होगा। बट यर नाइट्रोजन इज़ 1 and 2, दिस इज़ अनबैलेंस इक्वेशंस। ये क्या होता है, अनबैलेंस इक्वेशंस बताया इसमें। तो नाउ स्टेप्स इन बैलेंसिंग इक्वेशंस। बट बिफोर दैट इन एनी रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स मास ऑफ द reactant equal to the mass of the product, then we are telling as a balancing equations that already you learn in the previous standard। किस तरह से हम लोग बैलेंस करते पहले पढ़ चुके हो तुम लोग। मतलब जो नंबर ऑफ द प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ द एटम्स रहने चाहिए। याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम रहने चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो बैलेंस रहेगा तभी बैलेंसिंग इक्वेशन में होगा। नाउ हाउ यू आर राइटिंग इन अ बैलेंसिंग इक्वेशन केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप्स जस्ट सी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यह सोडियम सल्फेट एंड वी आर गेटिंग एज एन H2O। बट देखो फर्स्ट सोडियम एक है इधर लेफ्ट हैंड पार्ट में, तो सीधर सोडियम 2 है Na2। यहाँ पे O 1 है, O इज़ 1 ऑन दी लेफ्ट हैंड पार्ट 1, O ऑक्सीजन इज हाउ मच 1 and 4 दैट इज़ 5। हियर इन दिस केस ऑल्सो राइट हैंड पार्ट ऑक्सीजन इज़ 4 and 1 5। हाइड्रोजन इज़ 3, हियर हाइड्रोजन इज़ ओनली 2। सल्फर इज़ 1, हियर सल्फर इज़ ऑल्सो 1। So they mention in the step 2 first number of atom in the reactant part and the number of the atom in the sodium part। तो पहले सोडियम देखो लेफ्ट हैंड पार्ट में 1 है तो राइट हैंड पार्ट में 2 है। देन ऑक्सीजन इज़ 5, देन ऑक्सीजन इज़ 5 इन बोथ द केसेस। देन हाइड्रोजन इज़ 3, बट इन द केस ऑफ द राइट हैंड पार्ट रिएक्टेंट में हाइड्रोजन मेरा प्रोडक्ट में हाइड्रोजन मेरा 2 है। ईयर सल्फर इज़ 1, सल्फर इज़ 1। नाउ वी हैव टू बैलेंस। सोडियम कितना है इधर रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 2 है, तो कितना करेंगे। नाउ वी हैव टू, यू विल नॉट ऐड, याद रखना 1 + 1 नहीं करोगे, अपने को मल्टीप्लाई करना है इधर। हाँ वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड देन वी हैव टू बैलेंस इट। मुझे बोलता ना मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना है, जैसे कि सोडियम का 1 है तो 1 × 2, देन सोडियम विल बी बैलेंसिंग। तब जाके सोडियम बैलेंस होगा। जब मैं क्या करूँगा, जब सोडियम के अंदर 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 NaOH। तो अब ऑक्सीजन देखे जाएंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया। बट अब हाइड्रोजन देखेंगे 2H and 2H, हाइड्रोजन इज़ नाउ 4। हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, बट इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो मुझे राइट हैंड पार्ट में 2 मल्टीप्लाई करना होगा। जब राइट हैंड पार्ट में 2H2O करूँगा मैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन मेरा बैलेंसिंग में आ जाएगा और हाइड्रोजन भी बैलेंसिंग में आ जाएगा। तो लाइक दिस वे वंस वी आर मल्टीप्लाइंग ओनली 2 ऑन दी हाइड्रोजन पार्ट यू विल सी 2 NaOH। तो ये वी आर गेटिंग सोडियम सल्फेट एंड दी सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने क्या किया, हाइड्रोजन मेरा 3 and 2 का कॉम्बिनेशन दिया था। हाँ 3 and 2 कॉम्बिनेशंस। तो वी आर मल्टीप्लाइंग इन द NaOH पार्ट ओनली 2, क्योंकि सोडियम के पास Na2 है, तो मैं क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाई करूँगा सोडियम के पास। तो जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करता हूँ 2 NaOH, तो 2 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन दैट इज़ 6 ऑक्सीजन। बट इन द राइट हैंड पार्ट ओनली 4 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन दैट इज़ 5 ऑक्सीजन हो रहा है। और हाइड्रोजन मेरा कितना हो रहा है इधर 2 ऑक्सो हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन दैट इज़ 4 हाइड्रोजन, बट ईयर ओनली राइट हैंड पार्ट ओनली 2 हाइड्रोजन इज़ 2। So here 2 2s are 4. We have to multiply in the right hand part, reactant product part. We have to multiply our 2.
So here 2 hydrogen, that is 2H2O we will multiply. Then totally balancing equation will be there here. So first we will multiply in the right hand part, left hand part. So we balance SNR 2 NaOH plus H2O. So you will observe nitrogen is balancing condition, sodium is in the balancing condition. Now hydrogen is not in the balancing condition. Hydrogen is 2 hydrogen, 2 hydrogen is 4 hydrogen. So now we have to multiply here, hydrogen is 2. In the case of hydrogen, on the right hand reactant part we have to multiply a 2. So I will multiply 2 in the right hand part, 2 in the right hand part. अब फिर से हम लोग देखो रिएक्टेंट का देखते हैं प्रोडक्ट है. तो अब रिएक्टेंट में क्या हो गया है, पहले रिएक्टेंट नाइट्रोजन में कितना था, सोडियम में 1 था और 2 था. अब यहाँ पे सोडियम क्या है 2 and 2 इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पार्ट. नाउ ऑक्सीजन इज 6 एंड रिएक्टेंट इज 5, प्रोडक्ट इज 5. ऑक्सीजन का देखेंगे रिएक्टेंट में 6 है और प्रोडक्ट मेरा 5 है. हाइड्रोजन 4 और 2 हो गया है, ये भी अनबैलेंस है, बट सल्फर ऑलरेडी बैलेंस में है. नाउ आई विल डू इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 in the water part, 2H2O. First we will do in the reactant part, then we will go on the product part first. So now I am multiplying 2H2O. Then again you will write the equations. So you will see now 2H2O, that is 4 hydrogen in the right hand part, right hand part, and 4 hydrogen in the left hand part. 6 oxygen in the left hand part and 6 oxygen in the right hand part. Sodium is already 2, sulfur is 1, sulfur is 1. So like this way the last finally balance equation are coming here. We will discuss this topic later on the next time.